Hindi ba ako binili para hindi ko marinig lahat ng mga sinabi mo? Nung kinulong mo ako sa kwarto, tinakpan mo yung bibig ko para hindi ako makasigaw. Binabantayan mo ako sa kwarto mo para hindi ako makatakas, para hindi nila malaman na ikaw si Olive. Kaya mo ako sa pilitang dinala sa mental hospital. Kaya mo ako binaliw. Kaya pala parang pakiramdam ko ikaw si Mami. Kasi ikaw talaga si Mami. No. Ikaw si Mami. No, Muki, no. This is me. Ako yung Mommy Jade mo. Sinasabi lang nila yan kasi gusto nila akong siraan. Sinungaling! Sinungaling ka! Sinungaling ka! Alam ng lahat na kahit gaano karami ang kasamaang ginawa mo, pinagtatanggol kita, kinukonsinti kita, pilit kitang iniintindi kasi gusto kong bumawi sa iyong dalawa ni Jade. Pero ayaw ka talaga, sobra ka na. Sobra na ang kasamaan mo. Kaya hindi ako papayag. Nasisirain mo na ang buhay ni Emma at nakapukol si Pookie. Kaya umamin ka na, Olive! Wala akong aaminin sa inyo. Dahil hindi ako si Olive. Ako si Jade. Ngayon kung ayaw niyong maniwala, bahala kayo sa buhay niyo. Ganun di ka aamin? Tama ko na! Nay! Olive! Nay! Hindi ka natin sa tayo sa dali! Babalik ako. Sundan ko lang si Olive. Puntahan natin! Nay! Dito ka na lang. Ano ba sinabi ni nanay? Na ikaw ba si Olive? No! Bitawan mo ako, Danilo! Bitawan mo ako! Kung nagsisinungaling si nanay, bakit ka tumatakas ngayon? Dahil kitang-kita ko sa mga mata mo na si Ligaya ang pinapaniwalaan mo. Na si Emma ang pinapakinggan mo. Nakalimutan mo lahat ng ginawa ko para sa inyo ni Muki. Na ako ang nasa tabi niyo nung wala si Emma. Nung mga panahon na niloloko kayo ni Emma, ako ang kasama niyo, Danilo. Pero ngayon, handa ka rin bang tamayan ako? Bakit hindi ka makasagot? Dahil malaki ang pinagbago mo. Kaya hindi mo ako masisisi kung bakit ako naniwala kay nanay. Sinasabi mo lang yan kasi wala kang pakialam sa akin. Baliwala sa'yo lahat ng mga ginawa ko para sa inyo ni Muki. Dahil gulong-gulo na ako. Nay, sigurado ko kayo ayos na kayo? Huwag mo ko alalahanin, anak. Ayos lang ako. Emma? Anak mo? Patawarin mo ko, anak, ha? Patawarin mo ko kasi nung huli tayo nagkita, hindi maganda yung nangyari. Tapos nung panahon na kailangan mo, wala ako sa tabi mo. I'm sorry, anak. Wala ako doon. Tapos, patawarin mo rin ako kasi inuuna ko pa si Jade kaysa sa'yo. Si Jade na si Olive naman pala. Kasi noong mga panahon na yun, noong unang buhay si Jade, maganda naman yung pinakita niya sa akin eh. Totoo naman yung kabaitan niya eh. Yung kabaitan ng totoong Jade. Totoo yun eh. Tapos na si Olive talagang matawa na naging marupok ako bilang ina. I'm sorry, Emma. I'm sorry, anak. Nay, ayos lang po. Hindi naman po ako nagalit sa inyo eh. Alam ko po na nangulila lang din po kayo. Oo, nagtampo po ako. Pero ang mahalaga, buhay po kayo. Nagkasama po tayo. Pinabalik yun lang sa akin lahat ng sakit na naramdaman ko mula nung bata pa ako. Yung sakit na mawala ng mga taong mahal sa buhay. Nung hindi ako minahal ng mga taong nagampon sa akin. Nung iniwan ako ng anak ko dahil namatay siya. Si Maria Angela. Kaya hindi niyo ako masisisi kung bakit ako nagka-interest kay Muki. Hindi niyo ako masisisi.
kasi kung bakit ko nagawa yun. Interes ka kayo, Lucky. Ikaw nga si Olive! Danilo. Hayop ka! Ikaw nga si Olive! Tinakaw mo ang anak namin! Ikaw nga si Olive! Tinakaw mo ang anak namin! Hayop ka! Ay, nice. Si tatay ata yun ah. Baka nagkakasakitan na po sila ni Mami Olive. Nay, dito ka lang. Dito ka lang, ha? Saint, ikaw naman ang bahala kay nanay. Nay, kami nang bahala, ha? Ay, mag-iingat kayo. Dal! Balik ka dito! Bumalik ka dito eh! Olive! Ano ba? Bitawan mo ako! Bitawan mo ako, sabi! Sinabi na sa akin ni nanay ang lahat. Ang kapal na mukha mo, walang hiya ka. Alam mong wanted ka, kaya ka nagpanggap na Jane. Pero kahit anong pagpapanggap ang gawin mo, lumalabas pa rin yung totoong kulay ng balat mo. Balat ahas! Ahas na kung ahas. Eh, anong tawag sa inyo? Mga tanga! Nakakabingi na kasi yung tawa ng demonyo kagaya mo. Pero sisiguraduhin ko, natawa na lang yung magagawa mo. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Alam ko na makasama kang tao eh. Pero hindi ko alam na meron pa palang mas may isasama sa ginawa mo sa amin ng anak ko. Pagkatapos mong painumin yung anak ko ng kung ano-anong gamot. Ha? Binaliw mo ko sa Havenwood? At si nanay, sinaktan mo at trinata mo na parang hayop. At ang kapatid natin na si Jade, nakakambal mo. Pinatay mo ng ganun-ganun na lang. Ha? Piece of cake. Kaya kung ako sa'yo, Emma, matahod ka na. Dahil yung kambal ko nga napatay ko eh. Ikaw pa kaya! Yawa ang iisip mo ako! Dan! Okay! Dan! Okay! Sinuki mo ko anong gawin sa kanya? Mami, stop! Okay? Mami, tigilan mo na to. Okay? Okay, kaya mo ba ako binalikan kasi na-realize mo na ako talaga yung gusto mo? Na ako talaga yung gusto mong makasama at hindi si Emma. Okay. Okay. No. Kasi na-realize ko na mamamatay tao talaga kayo. Alam niyo, dati naawa ako sa inyo kasi akala ko malungkot lang kayo, kaya kayo nananakit ng ibang tao. Pero mali ako. You're not just sad, Mami. Demonyo ka. Baliw. Baliw ka, Mami! Baliw! Baliw! How dare you speak to me that way? Sumama ka sa akin, ha? Sumama ka sa akin! Ako ang pamilya mo! Sa akin ka lang! Hindi ako sasama sa inyo! Dapat magpagamot kayo sa doktor! Ha? Hindi na kayo makapanakit! No, Moki! Sa akin ka! Ano? Para hindi mo na magulo! Moki! Moki, no! Moki! Baka mamaya kung ano na nangyayari sa mag-ina. Zane, ano kaya sundan natin? Halika. Wag po. Delikado po, baka mapano kayo. Kung gusto niyo po, ako na lang po susunod. Basta pangako niyo po sa akin, dito lang po kayo. Huwag po kayo alis. Sige. Mugi! Mugi, anak! Mugi! Dahan, bilis! Ano nangyari kay Mugi? Bilis, dahan! Sige! Ano ba nangyari kay Mugi? Kailangan namin siya dahil sa ospital. Gamitin niyo ang kotse ko! Ikaw naman, halika na! Halika na, bilis! Mugi! Mugi! Okay? Akin na yung susi ng kotse, bilis! Bakit? Saan punta niyo? Basta akin na! Tabi! OJ, mapapagalitan na ako! O sige, sabi mo nga, ma'am! OJ! Ma'am! Pasensya na po, Aling Ligaya. Hindi ko pa naubutan si Tita Olive eh. Pero,
Nakatakas daw po agad siya nung nakita niyang inaasikaso ni Mang Danilo at saka Aling Emma si Muki. Ano? Nakatakas na naman? Panginoon, ano po ba to? Sunod-sunod na yung mga problema, hindi na natatapos. Ma'am, bukod po kay Miss Caparas, may iba pa po ba siyang kasama o kasabwat? Ewan basta ako, wala akong tiwala sa lahat ng mga galamay ni Olive. Isa pa yung loga na yan. Kursunada niya si Emma. Vicente, track mo si Logan. Lakbe, magtanong-tanong ka sa guest. May iba pa po ba kayo masabi tungkol kay Logan? Ano ngayon yan? Sinaktan mo na naman yung anak mo. Muntik mo na namang mapatay si Muki. No. Hindi ko sinasadya. Lisa, Ayokong saktan si Muki kaso ayaw niya na talaga sa akin. Lisa, hindi ko pa uuwi. She thinks I'm evil. Nag-aalala na nga po yung nanay ko eh, pero sabi ko po sa kanya, hindi ko po kayo pwede iwan dito. Huwag ipakita mo sa kanya na Nakapagluto ikaw nga ang po ako ng kailangan niya. Nakapaglaban na rin Na po ikaw ako ng ang paglinis. At may mga Nakailangan ka lang para bills. mabuhay. Pwede po, Bumalik. bigyan niyo na po akong pambayad. Ako na po ang pambayad. Hindi ko pamalingki. Nahiya lang ako sa'yo, Lisa. Kasi, Hello, ma'am. okay lang po yun. May kailangan Marami ako po wala tayong pinagsamahan. Masaya ko Huwag akong ka pinagsasabi. Pero bilisan mo. Kasi hindi pwedeng mamatay si Muki. Yan, sir. Kailangan niya ako. Basta, Kailangan ako ng anak ko para mabuhay. At ako lang ang makakapagpagaling sa kanya. Ako lang ang makakatulong kay Muki. Wala nang iba. Basta, ako Bilisan mo! papabayaan yung sarili ninyo. Dapat kumain kayo. Maligo. Magbihis ng maayos. Kasi bawal po kayo na-depress. Pag kailangan nyo naman po ng kausap, dito lang po ako. Nagawa mo na ba yung pinapaayos ko sa'yo? Bakit mo ginagawa ang ito, Lisa? Okay, good. Sir, nakalimutan Very niyo good. po ba? Very good. Di ba, ibinilin po kayo sa akin ni Maminda? Ba't wala na sa paligid natin? Eh, pangako mo Nasaan na? Aalaga ang mabuti si Sir. Bilisan mo! Para makapag-move on siya kaagad. Dan, Wala dapat na. hindi pa rin nagkakamali si Muki. Wala naman siyang dugo sa ulo niya. Muki. Muki, anak. Malasing ka na. Kasalanan ko to eh. Dahil hindi ako makapasok sa buhay natin si Jake. Si Olive. Wala akong kwentang asawa tama. Lahat tayo biktima dito ni Olive. Sinamantala niya yung kahinaan natin. Napakawalang hiya niya. Hindi ko tumanggap. Emma. Hindi ko ba sumusunod sa atin? Wala na yung sumita. Wala na sumita. Dan. Dan. Wala pa rin, oh! Nay? Day? Tulong! Tulungan niyo po kami! Animigaya! Oh, Animigaya, pasensya na po. Natagalan Okay ka lang ba? Wala Wala na kaming naabutan. Tapos na pala mga ganap. Kamusta ka naman, BFF? Mukhang kailangan mo na rin madala sa ospital. Oo nga. Diyos ko. Hindi. Hindi ko kailangan ng ospital. Ang kailangan ko, makita ko si Emma. Makita ko si Muki. Kailangan makasiguro ako na ligtas yung mag-anak ko. Lalo na ngayon eh. Nakatakas na naman pala yung Olive na yun, sabi ni Zane. Diyos ko. Eh. Tulungan niyo po kami, please.
Dad? Miss yung anak ko? Olive? Balik mo sa akin ang anak ko! Wookie! At bakit ko naman siya ibabalik sa'yo when she's mine to begin with? Ikaw ang nang-agaw dito, Emma, hindi ako! Kaya ang dapat sa'yo, mamatay! Sige, subukan mo. Kuya, salamat po. Yung nanay at tatay ko po nandun pa po, kuya. Saan ang tatay mo? Saan ang tatay mo dito? Kuya, ano po ginagawa niyo sa akin, kuya? Kuya! Tumawag ka ng tulong! Bilis! Olive! Logan? Olive! Tama na! Sige, subukan mo lumapit! Subukan mo lumapit, Logan, ipuputo ko to! Magkamatayan ako, magkamatayan! Pero babawiin ko ang anak ko! Tama na sabi! Bakit sino ba nagsabi sa'yo makialam ka, ha? Olive! Nay! Nay! Tulong! Nay! Paulit-ulit ko rin siyang kukunin sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, Emma, sumuko ka na. Dahil gagawin ko ang lahat para kay Mookie. Tama na! Alam kong patayin ang mga taong kumakalat sa plano ko! Tama na! Mabuhay mo! Tigil mo yan! Logan? 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 Swerte mo, Emma. Sinalo ni Logan ang balang dapat para sa'yo. Logan? Olive! Okay! 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 Logan? Logan? Bakit mo ginawa yun? Bakit? Dahil mahal kita. Patawarin mo ko. Ginawa ko lang naman lahat ng yun para sa'yo. Buong buhay ko kasi. Lagi na lang ako iniihirap. Wala talaga na rin magmamahal sa akin. May magmamahal sa'yo. Oo, may magmamahal sa'yo. Pero ikaw ang mahal ko. Okay lang. Dahil alam ko masaya ka ni Danilo. Kaya okay lang na mawala na ako. Parang tuluyan na kayo. Mabuo. Bilang isang pamilya. Yung tatlo. Logan, patawarin mo ko kung hindi ko magantihan yung pagmamahal mo sa akin. Patawarin mo ko. Hindi ka dapat tumingin ng tawad, Emma. Sabat sa akin ang binigay mo pagmamahal ng magkasama. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। कल्पना कीजिए आप अकेले हैं, घना जंगल है जहां पेड़ों की शाखाएं आसमान छूती है और सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती। चारों तरफ अजीब सी आवाजें और अचानक आपको एहसास होता है आप खो गए हैं। ना कोई रास्ता, ना पानी और ना कुछ भी दूर दूर तक नहीं। तब आपको महसूस होता है कोई आपको देख रहा है। यही डरावनी सच था जिसे लुकास मैकलिस ने जिया 10 दिनों तक। चलिए कहानी शुरू करते हैं। लुकास मैकलिस ने जून 2023 में कैलिफोर्निया का बिग बेसिन रेडवुड स्टेट पार्क
जिया एक 34 साल का नौजवान जिसके लिए जंगल दूसरा घर था, एक सामान्य हाइक पर निकला था, लेकिन 10 दिन तक वह प्रकृति की क्रूरता और रहस्यमय खामोशी से जूझता रहा। वह सिर्फ खो गया था या जंगल में कुछ और था, कुछ था उसे देख रहा था, उसका पीछा कर रहा था। आज हमें आपको लुकास की इस दिल दहलाने वाली कहानी को सुनाएंगे और बताएंगे अगर आप कभी जंगल में फंस जाए तो कैसा जिंदा रह सकते हैं। लुकास मैकलिस सांता क्रूज कैलिफोर्निया का रहने वाला था। ये एक छोटा सा तटीय शहर है जहाँ समुद्र की लहरें और जंगल की हरियाली एक दूसरे से गले मिलते हैं। लुकास का एक लैंडस्केपर था जिसका दिन पेड़ पौधों के बीच बीतता था। उसकी भूरी दाढ़ी, मजबूत कटकाठी और शांत आत्मविश्वास उसे जंगल का सच्चा सिपाही बनाता था। उसके दोस्त उसे इंसान बनाते थे जो किसी भी मुश्किल को हंसते हंसते पार कर सकता था। बचपन से ही वह बिग बेसिन के घने रास्तों में भटकता, उन विशाल रेडवुड पेड़ों के बीच जो सड़कों साल पुराने वो खुद को आज महसूस करता है। लेकिन उस जून की सुबह जब वो अपने हाइकिंग बूट्स पहनकर निकला, उसने एक छोटी सी गलती की। उसने किसी को नहीं बताया वह कहाँ जा रहा है। ये गलती उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन गई। लुकास ने अपने छोटे से बैकपैक में जारी सामान रखा, एक पानी की बोतल, एक चाकू और कुछ बुनियादी चीज़ें। यह यकीन था कि वह कुछ घंटों में वापस लौट आएगा। बिग बेसिन ने रेडवुड के पेड़ आसमान को छूते हुए और उनके बीच चलना ऐसा जैसे कि किसी प्राचीन दुनिया में कदम रखना। लुकास को यह जगह पसंद थी, यहाँ की शांति की पत्तियों की सरसराहट और हवा सनसनाहट। लेकिन उस दिन जंगल ने उसका स्वागत नहीं किया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता विचित्र रास्ते अब गायब होने लगे। पेड़ों की छाया गहरी होती गई और सूरज की रोशनी धुंधली। लुकास को एहसास हुआ कि वो भटक गया है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा बस थोड़ा और चलूं, रास्ता मिल जाएगा। लेकिन हर कदम उसे जंगल की ओर गहराई में ले जाता जा रहा था। उसने अपने आसपास देखा, हर तरफ एक जैसी हरियाली, एक जैसी छाएं। अब वो बिल्कुल पूरी तरह खो चुका था। उसके मन में डर ने घेर लिया था। उसने अपने परिवार की याद सताने लगी। उसकी माँ जो हमेशा कहती थी लुकास जंगल में सावधान रहना। उसने खुद को समझाया कि वह इससे बाहर कैसे निकल जाए। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलने लगा जंगल और भी डरावना होता गया। उसने अपने चाकू को कसकर पकड़ा, मानो वह उसकी आखिरी उम्मीद हो। उसने सोचा मुझे रुकना होगा, मुझे रात के लिए तैयार होना होगा। लेकिन जंगल की खामोशी अब उसे डराने लगी थी। क्या वह सचमुच अकेला था? सूरज ढल चुका था और बिग बेसिन रेडवुड स्टेट पार्क अब एक अंधेरी रहस्यमय दुनिया में बदल गया था। लुकास जो हमेशा जंगल में सहज महसूस करता था, अब वो खुद को असहाय पा रहा था। ठंडी हवा उसके फ्लेनल शर्ट को भेद रही थी और चारों ओर अंधेरा ऐसा था कि उसकी अपनी साए में से डरने लगा। उसने अपने बैकअप से पानी की आखिरी बूंद पी और फैसला किया उसे रात के लिए रुकना होगा। उसने वही कैंप लगाया। उसने एक बड़े से रेडू पेड़ के नीचे शरण ली जहाँ जमीन पर पत्तियों को मोटा कालीन बिछा था। उसने सोचा कि सुबह होने पर वह रास्ता ढूंढ लेगा, लेकिन रात ने जंगल और डरावना बना दिया था। पत्तियों की सरसराहट अब सामने नहीं लग रही थी। हर छोटी सी आवाज़, टहनी का टूटना, हवा का झोंका और दूर से आती किसी जानवर की आवाज़ें लुकास के दिल को और तेज कर देती। उसने अपने घुटनों को सीने से लगाया और सांस रोककर सुनने की कोशिश की। क्या वह अकेला था या जंगल में कोई और भी था? उसने एक बार कुछ ऐसा सुना जो इंसानी कदमों जैसा लगा, लेकिन जब उसने नज़र दौड़ाई तो वहाँ कुछ नहीं था। उसका दिमाग उससे खेल रहा था या जंगल सचमुच से डरा रहा था। लुकास ने खुद को समझाया, शांत रहो लुकास, ये सिर्फ जंगल है, लेकिन अंधेरे में जंगल का कोई दोस्त नहीं होता। उससे टहनियों और पत्तियों से एक छोटा सा आश्रय बनाया ताकि ठंड से कुछ राहत मिले। उसने सूखी पत्तियों को इकट्ठा किया और उन्हें सब अपने चारों ओर बिछाया ताकि जमीन की ठंडक उसे न छुए। उसका शरीर कांप रहा था और भूख ने उसे पेट को मरोड़ शुरू कर दिया था। वो भूख से भी परेशान हो रहा था। उसके पास न ही तो खाना था और न ही पानी था। उसने सोचा कि वो सुबह किसी नदी तक पहुंचेगा, लेकिन रात लंबी थी और हर पल नई चुनौतियां लेकर आती थी। लुकास ने अपनी माँ की बातें याद की जो उसे बचपन की कहानियाँ सुनाती थी। उसने खुद को हिम्मत दी,
मैं इससे बाहर निकलूंगा। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई उसका आत्मविश्वास डगमगाते गया। लुकास ने अपने चाकू को कसकर पकड़ा। वह एक छोटी सी आवाज पर चौंक जाता। एक बार उसे लगा कि कोई छाया पेड़ के बीच हिली। उसने अपनी आंखें तैरती लेकिन वह कुछ नहीं था। ये सिर्फ हवा, उसने खुद से कहा, लेकिन फिर वही आवाज टहनियों का टूटना जैसे कोई पास आ रहा हो। उसने अपनी सांसें रोकी और इंतजार किया। कुछ नहीं हुआ, लेकिन डर अब उसके दिल में घर कर चुका था। उसने अपने परिवार के बारे में सोचा। उसकी माँ जो हर रात उसके लिए दुआ करती, उसके दोस्तों जो सांता कुंज की सड़कों पर उनके साथ हंसी मजाक करते। उसने खुद से वादा किया कि वह वापस लौटेगा चाहे कुछ भी हो जाए। रात के अंधेरे में, रात के आखिरी घंटों में लुकास ने अपने आश्रय में लेटकर असामान्य की ओर देखा। चांद की मध्यम रोशनी पेड़ों की बीच से छिन रही थी। उसने सोचा, अगर मैं सुबह तक जिंदा रहा तो मैं रास्ता ढूंढ लूंगा। लेकिन जंगल की खामोशी अब डरावनी थी। हर पल उसे लगता था कि कोई उसे देख रहा है। वह छाया जो पेड़ों के बीच हिलती थी, क्या वह सिर्फ उसका वहम था या जंगल में कोई भी और था? लुकास के घर न लौटने पर उसका परिवार घबरा गया। उसकी माँ डायना जो हमेशा उसकी सलामती की दुआ करती थी, तुरंत पुलिस को फोन किया। मेरा बेटा जंगल में है और वह वापस नहीं आया, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। उसकी आवाज में डर और उम्मीद दोनों थे। सांता कुंज की पुलिस ने बिग बेसिन रेडवुड स्टेट पार्क के अधिकारियों को अलर्ट किया। एक खोज अभियान शुरू हुआ। इस अभियान की कमान पार्क रेंजर एमिल कॉर्टर ने संभाली। 40 साल के एमिल अपनी नीली आंखों और दृढ़ इरादों के लिए जाने जाते थे। वह उन हाइकर्स को ढूंढने में माहिर थे जो जंगल में भूल-भुलैया में खो जाते थे। खोज दल ने लुकास और आखिरी ज्ञात स्थान से शुरुआत की, ऐसा ट्रेल जहां वह अक्सर हाइक करता था। उन्होंने नक्शे, फ्लैश लाइट्स और रेडियो के साथ जंगल में कदम रखा। लेकिन बिग बेसिन कोई साधारण जंगल नहीं था। इसने घने पेड़ और उलझे हुए रास्ते खोज में मुश्किल बना रहे थे। पहले दिन उन्हें एक नदी के किनारे कुछ पैरों के निशान मिले जो लुकास के हाइकिंग बूट से मिलते जुलते थे। फैमिली ने उन्हें निशानों को ध्यान से देखा। ये उसका हो सकता है, उसने कहा, लेकिन बारिश ने उन निशानों को धुंधला कर दिया और रास्ता फिर से गायब हो गया। एमिल ने अपने दल को हिम्मत दी। हमें उसे ढूंढना होगा, वो जिंदा है, मुझे यकीन है। सांता कुंज के स्थानीय लोग अब इस गुमशुदगी की बात करने लगे थे। एक छोटे से डाइनर में जहां कॉफी की खुशबू हवा में तैरती थी, लोग फुसफुसा रहे थे। बिग बेसिन में कुछ ठीक नहीं है, एक बूढ़ा आदमी बोला। वहाँ लोग गायब हो जाते हैं और कोई नहीं जानता क्यों। कुछ ने जंगली जानवरों की बात कही, भालू या शायद कुछ प्यूमा। दूसरों का शक था कि जंगल में कोई इंसान छिपा है। ये कहानियां खोज दल के लिए और दबाव बढ़ा रही थी। लुकास का परिवार भी खोज में शामिल हो गया था। डायना हर दिन जंगल में जाती, लुकास का नाम पुकारती। वह मेरा बेटा है, वह कहती, वो हार नहीं मानेगा। खोज दल ने दिन रात जंगल को छाना। वह हर रास्ते, हर गली और हर पेड़ के पीछे देखते, लेकिन जंगल जैसे उनके साथ मजाक कर रहा था। हर रास्ता एक नई भूल-भुलैया में ले जाता था। एमिल को लगता था कि जंगल कुछ छिपा रहा है। रात में जब खोज दल ने अपने टेंट में बैठा था, उन्होंने भी अजीब सी आवाजें सुनाई देती। ये सिर्फ जंगल है, एमिल ने दिल को समझाते हुए कहा। लेकिन उसके मन में भी डर था, क्या लुकास अभी भी जीवित था या जंगल ने उसे हमेशा के लिए निगल लिया था। डायना ने एक रात एमिल से कहा, वो मेरा इकलौता बेटा है, उसे ढूंढ लीजिए। एमिल ने उसका हाथ थामा और वादा किया, हम जरूर ढूंढेंगे उसके। खोज के 5वें दिन एक नया सुराग सामने आया। एक कांटेदार झाड़ी पर लुकास की हरी प्लेंट शर्ट एक टुकड़ा फंसा हुआ था। ये उस जगह से मीलों दूर था जहाँ से आखिरी बार देखा गया था। एमिल ने उस टुकड़े को ध्यान से देखा। ये उसका हो सकता है, उसने कहा, लेकिन उसका दिल डूब रहा था। क्या लुकास घायल होकर भटक रहा था या किसी ने उसको वहां ले गया था? यह सवाल खोज दल को परेशान कर रहा था। लेकिन उस टुकड़े पर ना तो खून था, ना कोई निशान कुछ बातें बता सके। ये सारा सुराग और सवाल खड़े हो रहे थे। उसी समय सांता कुंज में एक नई अफवाह फैलने लगी। कुछ हाइकर्स ने बताया कि उन्होंने जंगल में एक अजीब आदमी को देखा था। 50 साल का, उलझे स्लेटी बाल, फटी बुरी जैकेट और आंखें जो डरावनी लगती थी। लोग उसे जंगल का भटकता कहने लगे थे। क्या लुकास उससे टकरा गया था?
क्या वह आदमी जंगल में छिपा कोई शिकारी था? पुलिस ने अब उसे अजनबी को हिरासत में लिया। उसका नाम जॉन था और वो बेघर था। उसका कोई घर नहीं था, जो जंगल में अकेले रहता था। पूछताछ में उसे ठंडी आवाज में पूछा, मैंने किसी को नहीं देखा। उसके पास कोई सबूत नहीं था और पुलिस ने उसे छोड़ना पड़ा। लेकिन जॉन की मौजूदगी ने जंगल की कहानियों को और हवा दे दी। बिग बेसिन ने पुरानी कहानियां फिर से जुबान पर थी। हाइकर्स जो गायब हो गए थे, रात में दिखने वाली छायाएं और जंगल वह खामोशी जो इंसान को पागल कर दे। कुछ लोगों ने कहा जंगल में कोई आत्मा है जो भटकने वाले को अपने पास बुलाती है। दूसरों ने जंगली जानवरों की बात की। एमिल ने उन कहानियों को नजरअंदाज किया, लेकिन वह भी सोच रहा था कि लुकास किस खतरे में हो सकता है। फ्लेनल का टुकड़ा अब और उससे सवाल खड़े कर रहा था, क्या लुकास ने खुद से वहां छोड़ा था ताकि कोई उसे ढूंढ ले, या किसी और काम का था? खोज दल ने उसे इलाकों को छान मारा, लेकिन कोई और निशान नहीं मिला। जंगल जैसे अपने रहस्य में छुपा रहा था। रात में जब खोज दल अपने टेंट में बैठा, उन्हें लगता कि कोई उन्हें देख रहा है। ये जंगल कुछ छिपा रहा है, या रेंजर ने फुसफुसाया। एमिल ने जवाब दिया, हमें डरने का वक्त नहीं है, हमें लुकास को ढूंढना है। लेकिन उसका मन भी बेचैन था। लुकास का परिवार अब टूटने की कगार पर था। डायना हर रात अपने बेटे की तस्वीर को देखती और रोती। वो जिंदा है, वह कहती, मुझे पता है वो हार नहीं मानेगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उम्मीद की किरण अब धुंधली सी पड़ने लगी। खोज दल थक रहा था और जंगल का हर कोना एक नई पहेली देख रहा था। क्या लुकास अभी भी जीवित था, या जंगल ने उसे हमेशा के लिए अपने आगोश में ले लिया था? 9वां दिन आ गया। खोज दल की हिम्मत जवाब दे रही थी। लुकास का परिवार टूट चुका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। डायना हर दिन जंगल में जाती, लुकास का नाम पुकारती, मेरा बेटा कहीं है। वह कहती, उसकी आंखों में आंसू भरे होते। एमिल कॉटर ने भी अपने दिल से प्रेरित किया, हमें उसे जिंदा ढूंढने। लेकिन जंगल की क्रूरता ने सबको थका दिया था। तभी एक चमत्कार हुआ। एक हाइकर ने जंगल में एक दूर कैनियन में हल्की सी पुकार सुनी, कोई है, मदद। ये लुकास की आवाज ही थी। सब एक्टिव हो गए। फैमिली की टीम ने उसे कैनियन की ओर दौड़ लगाई। कोहरा घना था और रास्ता उबड़ खाबड़, लेकिन जैसे ही वह कैनियन में पूछे, उन्हें टहनियों से बना एक SOS सिग्नल मिला। ये लुसाका था। पास ही चट्टान पे सारे लुकास लेटा हुआ था। उसका शरीर कमजोर था, चेहरे खरोच से भरा और आंखें डर से भरी हुई थी, लेकिन वह जिंदा था। एमिल ने उसे देखकर राहत की सांस ली। हमने तुम्हें ढूंढ लिया लुकास, उसने कहा। लुकास ने कमजोर आवाज में जवाब दिया, मुझे लगा मैं कभी अब निकल नहीं पाऊंगा। लुकास ने बताया कि उसे नदियों से पानी पिया और जंगली जामुन खाए। उसने अपनी जंगल की समय का इस्तेमाल किया। वह जानता था कि कौन से पौधे खाने लायक है और कौन से आश्रय बनाने के लायक। उसने रात को ठंड से बचने के लिए पत्तियों को ढेर सारे में फूल को छुपाया, लेकिन उसकी हालत देखकर सब हैरान थे। 9 दिन बिना खाना, न्यूनतम पानी और ठंडी रातों में जीवित रहना, ये कोई साधारण बात नहीं थी। लुकास की ओर में आंखों में एक और अजीब सा डर था। उसने बताया कि उसे हर रात लगता था कोई उसे देख रहा हो। छायाएं थी, उसने कहा, वो पेड़ों के बीच हिलती थी, लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं देखा। हवा में फुसफुसाहट थी, जैसे कोई मेरे पास था। खोज दल ने उसकी बातें अजीब लगी। क्या ये भूख और थकान का वहम है, या जंगल में सचमुच कुछ था? उन्होंने उसे कैनियन को छाना, लेकिन कोई और निशान नहीं मिला, ना कोई पैरों के निशान, ना कोई सबूत। लुकास की कहानी ने सबको सोच में डाल दिया। एमिल ने उससे पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने कुछ देखा है? लुकास ने सिर्फ सिर हिलाया। उसकी आंखें खाली थी। खोज दल ने उसे स्ट्रेचर पर लेटाया और हेलीकॉप्टर के लिए तैयार किया। डायना, जो पास ही खड़ी थी, अपने बेटों को देखकर रो पड़ी। मेरा लुकास, उसने कहा और उसे गले से लगा लिया। लुकास को हेलीकॉप्टर से सांता क्रूज की एक अस्पताल में लाया गया। कोहरे भरे कैनियन और हेलीकॉप्टर की आवाज गूंज रही थी और खोज दल ने रात की सांस ली। लुकास का शरीर कमजोर था, लेकिन उसकी आत्मा अटल, और डॉक्टरों ने उसकी जीवटता पर हैरानी जताई। 10 दिन तक बिना खाना और इतनी कमजोरी में यह चमत्कार है।
डॉक्टर ने कहा। लुकास ने अस्पताल के बिस्तर पर अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसने रातों में अनदेखी खतरों से बचते हुए बताई। दिन में वह पेड़ों में भूल-भुलैया में रास्ता ढूंढता रहा, लेकिन सबसे डरावनी बात थी वह आसपास की अकेला नहीं था। मुझे लगता है मेरे पीछे और भी था। उसने कहा हवा में फुसफुसाहट की छाएं थी जो पेड़ों के बीच हिलती थी। मैंने कभी किसी को नहीं देखा, लेकिन मैंने उन्हें महसूस किया। उसकी बातों ने सबको चौंका दिया। यह सिर्फ थकान और भूख का नजदीकता था या बिग बेसिन में कोई गहरा रहस्य था। फौज दल ने उसे कैनियन और तलाश के लिए उन्होंने कुछ नहीं मिला, न कोई पैरों के निशान, न कोई सबूत। लुकास की आंखें, वो डर अभी भी था मानो जंगल ने उसका एक हिस्सा अपने पास रख लिया हो। डायना ने अपने बेटे को हाथ थामा और कहा तुम घर वापस आ गए हो, बस यही मायना रखता है। लेकिन लुकास की आंखें कुछ और कह रही थी। लुकास धीरे धीरे ठीक हुआ। वह अपने परिवार के पास लौटा, सांताक्रूज की उन सड़कों पर जहां वह पहले हंसते हंसते चलता था, लेकिन अब वह बदल गया था। उसने कसम खाई कि वह कभी अकेले हाइकिंग नहीं करेगा। उसने अपने दोस्तों को बताया जंगल खूबसूरत है, लेकिन वह आपको तोड़ सकता है। बिग बेसिन अब भी अपनी खूबसूरती और खौफ के साथ खड़ा है। वहाँ आज भी हाइकर्स गायब होते हैं और स्थानीय लोग अभी भी उन्हीं छायाओं की बात करते हैं जो रात में दिखती है। क्या लुकास ने सचमुच कुछ देखा था या उसके दिमाग का वहम था? जंगल का ये रहस्य अनसुलझा है। हमारी कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सवाल बाकी है। क्या आपने भी कभी जंगल में ऐसा कुछ महसूस किया है? क्या आपको लगता है कि बिग बेसिन में कोई रहस्य में छिपा है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कहानियों में कमेंट जरूर करें। जंगल की दुनिया खूबसूरत है, लेकिन खतरनाक भी है, और शायद कहीं गहरे में वह कुछ छिपा रही है जो हमें कभी नहीं समझा पाएंगे। लुकास मैकलिस की कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत और समझदारी से आप सबसे मुश्किल हालात में भी जीवित रह सकते हैं। लेकिन ये भी याद रखें, प्रकृति का हर कोना अपने साथ एक रहस्य लाता है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें। जब भी हमारी वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।